question again. So in this video lecture beta we're going to solve March 2025 AS level accounting paper 22 question number 4, which is pertaining to cost and management accounting, and it's a 30 marks question. T Limited is a manufacturing company which uses absorption costing. The factory has two production department, cutting and finishing. It also has two service department, stores and canteen. Some budgeted overheads have been allocated to departments as follows. The following budgeted overheads have yet to be allocated or apportioned. तो ये ऑलरेडी उन्होंने डिपार्टमेंटल वाइज एलोकेट किए हुए हैं. इसके अलावा ये 4 overheads और दिए हुए which you need to further allocate, and the basis that you will going to use for this apportionment or allocation is this. So without a further ado, let's move on to the question. तो ये आपके overheads allocated already लिखे हुए हैं. यहाँ नहीं लिखे होते तो ये आप खुद कॉपी पेस्ट कर सकते थे. अब बाकी सुपरवाइजर सैलरी उन्होंने ऑलरेडी आपको दी हुई है कटिंग डिपार्टमेंट की. सुपरवाइज़र सैलरी कटिंग और फिनिशिंग की उन्होंने खुद आपको अलग अलग दी हुई है, तो बस आप कॉपी पेस्ट कर देंगे. सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी, salary is 28,200 and 26,300. Sorry, this is the total column, 28,200 and 26,300, and if you take out the total of both you will get 54,500. The next item is depreciation of machinery. Depreciation of machine. So the basis that we will to use is cost of machinery, floor area, issue from stores, number of employees. So the most appropriate that I feel is cost of machinery. So 220. So we're going to take out the total of all these four values. 30 plus 20, 57, 57, 63, 63 plus 152, 155, 155 or 215, 215 for 35,000. So now how will we take out depreciation? So you will, since you know the total is 435,000, so in order to form a fraction, 220,000 upon 435,000 multiply by 87,000. सही है, इसको allocate कर लेना ये. तो अब if you take out, this would be 44,000, and now similarly, rather than keeping 220, you will replace it with 152,000. So when you replace it with 152,000, you will going to get another value which is 30,400. Then you will replace 152,000 by 37,000, and the depreciation that you will get is 7,400. Then you will replace this 37,000 by 26,000. Then the answer that you will going to get is 5,200. So you can write all of these values for depreciation. Total is 87,000, 44,000 is for cutting, 30,400 is for finishing, and 7,400 is for stores, and 5,200 is for canteen. Rent, and for rent you will going to use floor area. So let's take out the total of floor area. 1,500 plus 900, 2,400 plus 270, 2,670, 2,700 and 3,000. So 3,000 meter square is the whole area of all the four departments. So in order to take out the fraction 1,500 upon 3,000, and you will multiply this by 48,000. So the rent that you will going to get for cutting is 24,000. Then you will replace this 1,500 by 890. So the rent you will get is 14,240. 14,240. Then you will replace this by 280, and the rent that you are going to get is 4,480. Then you will replace this by 330. The rent that you will get is 5,280. So let's copy paste these values. Rent 48,000 is the total rent. 24,000 is for cutting. 14,240 is for finishing, and 4,480 is for stores, and 5,280 is for canteen. Now you will take out the subtotal. 614,060 is the total,
279470 is the total of cutting. You will take out the total of all these four values for all these columns. Then when you add 216930 is the total of finishing, 57260 is the total of stores, and 60,400 is the total of canteen. Now we're going to reapportion the cost of canteen first. So in order for canteen, we're going to use, what will we going to use? I think we're going to use number of employees. If they would have given us number of employees for canteen, we would have completely ignored it, like it wouldn't have affected the calculation as well, even if they would have given us the employees for canteen. So we're going to ignore this completely in the total as well. So let's take out the total number of employees. 45 plus 31, 46, 56, 56, 66, 76, 76 plus 6, 82. So 45 upon 82 is the fraction, and the total cost is 45 upon 82 multiplied by 60,400. So if you do it with your calculator, 45 divided by 82 multiplied by 60,400, 33,146 point something is the answer, 0.3, so you will round it off to 33,146. Now similarly you will replace 45 by 31 now, and the answer that you will going to get is 22834. And similarly now you will replace this with 6, and the answer that you will get is 4420. So 60,400 यहाँ से आप subtract कर देंगे because you will allocate it. You will take out the total for all subtotal. Now you will add these two values to get the subtotal. So the new subtotal is 312616 239 764 and 61680. Then you will going to split the cost of stores. 61680, this will become 0, and for store you will going to use issues from stores. So total issues are for two department only, and 84 plus 43, 124, 125, 127. So 84 plus 127 multiplied by 61680. So the answer that you will get for stores is 40796 and 43. So the answer that you will get is 20884 353 412 260 648. Acha, in order to check, just take out the total of these two total overheads. तो अगर आप इनका टोटल निकालें 353 412 प्लस 260 648, टोटल क्या आ रहा है इन दोनों का 614,060. कहने का मतलब ये कि टोटल जो कंपनी के फैक्ट्री के ओवरहेड जो है वो 614,060 ही हुए. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन शीट में आपने ये कर दिया, ओवरहेड एनालिसिस शीट में, कि आपको अब ये पता चलिए जो 614,060 के टोटल ओवरहेड्स इनकर हुए, इसमें से 353,412 आप समझिए कटिंग में इनकर हुए, और बाकी 260,648 फिनिशिंग में इनकर हुए. यानी आपको इन दी एंड रिज़ल्ट आपको ये करना है कि आपको जितने भी ओवरहेड कॉस्ट है ना, वो इवेंचुअली आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र करने सारे, और सर्विस डिपार्टमेंट से भी हटाने. तो हमने यही करा है, सही है इसमें. तो ये मकसद होता है ओवरहेड एनालिसिस शीट का. नाउ दिस वाज फॉर 5 marks. Now we're going to take out overhead absorption rate for the cutting department. So for cutting department formula क्या होता है, budgeted overheads budgeted overheads upon budgeted hours. So budgeted overheads for cutting department is 353,412, and for cutting department, if you look at labor or machine hours, so machine hours are more, so we're going to divide it by machine hours. So the answer that you will get is 42.99.
but if you write it just 42.99, you might not get marks. You have to write dollar first, then 42.99, and per whatever is in denominator labor hour, so you'll use per labor hour. Then for finishing department, overheads are 260,648, and you will divide it by 7144, because for finishing labor hours are more as compared to machine hours. The answer that you will get is 36.48 per labor hour. So you have to, it's necessary that you put the dollar sign and you also write per labor hour or per machine hour, whatever it is. Then in addition information, the stores department issues component X to the finishing department. The weighted average method of inventory control is used by stores department. The following details about the components are available for January 2025. On 1st January 2025, the stores had 6 component X in the inventory, which had cost 8 each. अब क्या करना है आपको? So you need to take out the value of inventory on 6th Jan. तो 6 Jan को आपकी इन्वेंट्री कितने की हो जाएगी? तो पहले से 6 × 8 48 की इन्वेंट्री आपके वहाँ मौजूद थी. 12 × 8 आपने 12 × 8 12 8 से 96 की आपने खरीदी. 48 + 96 144 की इन्वेंट्री हो गई. सही है, 144 की. अब 9 Jan को, तो अब आपने 9 Jan को 7 बेच दिया, तो $144 के टोटल कितने यूनिट्स पड़े हुए थे? 144 में 6 + 12 18. तो इफ़ यू टेक आउट द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 144 डिवाइडेड बाई 18, तो आपको एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगी, विच इज़ 8. तो अब सारे यूनिट्स वेटेड एफको में एक ही प्राइस पर हो जाते, एवरेज प्राइस पर एक. तो भले आपने कोई 8 का ख़रीदा है, कोई जितने का भी ख़रीदा है, सबकी प्राइस 8 है. तो 8 के हिसाब से आपने 7 आउट कर दिया. तो अगर टोटल 18 यूनिट्स तो उसमें से 7 आउट होगा, तो 11 बच गए. तो 11 × 8 के हिसाब से आपको पता चल जाएगी कॉस्ट कितनी है जो 11 यूनिट्स उनकी, 88. 16th Jan को आपके पास और आए 8 × 9 = 72. तो आप 88 के पहले से पड़े थे, 72 के आपने और ख़रीदे. 88 + 72 160. तो इसमें कितने यूनिट्स था आपके पास? 11 यूनिट्स पड़े थे ना, और आपने 8 और ख़रीदे, तो 19 यूनिट्स हो गए. अब 19 यूनिट्स आपके पास हो गए. अब 21st Jan को आपको देखना है, 13 यूनिट्स आपने बेच दिए. तो 19 में से 13 बेचे तो 6 रह गए, 6 यूनिट्स. तो अगर आप 160 को डिवाइड बाय 19 करें तो आपको पता चल जाएगा एक की कॉस्ट क्या थी, एवरेज कॉस्ट. और 6 रह गए तो मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, तो याद है कि 50.53. तो ये 6 यूनिट्स जो बच गए उनकी कॉस्ट है. अब 27th को आपने फर्दर 10 खरीदे, 10 × 10 = 100. तो 100 इसमें बस आप ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा $150.53. इसके बाद डीलिमिटेड uses marginal costing at another factory where 2 products B and C are made. The following forecast information is available for August 2025. सही है. Fixed costs are 1100 per month. The suppliers of direct material has notified the directors that delivery problem will mean that in August 2025 only 70% of the forecast requirement for direct material will be available. Directors are considering 2 options for August 2025. Organize production in order to produce the maximum profit with available material. Purchase additional materials from a new overseas suppliers to make up for the shortfall. The supplier charges $5 per kg. Calculate the profit to be made in August 2025 for each option. तो अब देख लेते हैं. तो अब होगा क्या ऑप्शन नंबर ए में कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो है, हाँ कितनी है? ऑप्शन ए में यू विल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट विद अवेलेबल मटेरियल. तो अब मटेरियल का इसमें शॉर्टेज हुआ है. सही है. तो अगर आप चेक करें 7 × 4 एक में 28 का लग रहा है. 14 × 9 140 - 14 126. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है 19, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो 19 × 60. अब देख रहे हैं किसी ना किसी की प्रोडक्शन कट डाउन होगी, तो कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए आप निकालेंगे क्या चीज़ शॉर्ट है, नंबर ऑफ़ केजीस अवेलेबल है ना.
नंबर ऑफ़ केजी शॉर्ट है। तो कितना अवेलेबल है, तो देखें आपको कितने चाहिए, 7 kg बी के लिए रिक्वायर्ड है और 9 kg एक सी के लिए रिक्वायर्ड है। तो 7 × 60 + 9 × 50 इतना आपको रिक्वायर्ड है। 7 × 6 = 42, 9 × 5 = 45, 420 + 45 870 kg आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन 70% अवेलेबल है। तो 870 × 70/100 आप करें तो आपको पता चल जाएगा कितना अवेलेबल है। 870 × 70 / 100 609 kg आपके पास अवेलेबल है। सही है, 609 kg आपके पास अवेलेबल है। इसको आप यूज़ करेंगे, 609 kg को आप यूज़ करेंगे। तो अब आप देखें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 19 और 21 बी एंड सी का, और kg पर यूनिट ये है आपके पास 7 और 9। तो अब आप निकालेंगे इसको, 2 है तो 1/2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। 19 / 7 2.71, 21 / 9 2.33। तो इसमें हर एक केजी में कंट्रीब्यूशन 2.71 का आप जनरेट कर रहे हैं, और इसमें अगर 1 kg यूज़ करेंगे तो आप 1 kg में 2.33 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी आपकी होगी, पहले आप बी बनाएं, फिर सेकंड पर आप ये सी बनाएं। तो अब आप देखें किसको कितना बनाएंगे। तो आप के पास टोटल कितने किलोज़ अवेलेबल है, 609 kg अवेलेबल है ना, 609 kg अवेलेबल है। सही है। तो अब लेट्स अगर आप सारे बी बना दें तो सारे बी बनाने में कितने रिक्वायर्ड है, 7 × 60 यूनिट्स आप बनाएंगे। 7 × 60 420 kg तो आपके यहाँ चले जाएंगे। तो 609 में से अगर आप 420 यहाँ यूज़ कर ले तो कितने बच गए, 189। 6209 - 420 189 बच गए, और एक उस पर 9 kg लग रहा है। तो अगर एक पे 9 kg लग रहा है तो कितने बनेंगे, तो 9 × x = 189 x बनेंगे। तो 189 / 9 टोटल आप 21 ये बना पाएंगे। तो 60 आपके बी बनेंगे और 21 आपके सीज़ बनेंगे। सही है, 21 यूनिट सीज़ के बनेंगे। तब आप निकाल लें प्रॉफिट। तो अगर अब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 60 यूनिट्स का, 60 बी का है, हर एक यूनिट का है 19, और 21 हर एक सी का है 21। तो टोटल आपका जो कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा वो ये, और उसमें से आप फ़िक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो फ़िक्स कॉस्ट एक महीने की 1100। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा $481 का पर मंथ इन ऑप्शन नंबर ए। नाउ इफ़ यू गो फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, परचेज एडिशनल मटेरियल फ्रॉम अ न्यू ओवरसीज सप्लायर टू मेक अप द शॉर्टफॉल, द सप्लायर चार्जेस $5 पर kg। तो आपको आपका जो ये आप कंप्लीट प्रोडक्शन आप अपनी करते हैं। सही है। तो ये देखें, अब आप जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनमें महंगा मटेरियल यूज़ करेंगे। सही है, महंगा मटेरियल यूज़ करेंगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि देखें इसमें आप 21 बना रहे हैं ना यूनिट्स, जो एग्जिस्टिंग केजीज़ है उसमें तो आप 21 सीज़ बना सकते हैं। बाकी 50 - 21 बाकी 29 यूनिट्स के लिए आप ओवरसीज़ सप्लायर से जो रॉ मटेरियल लिया है वो यूज़ करेंगे। तो जब आप ओवरसीज़ सप्लायर से जो रॉ मटेरियल लिया है वो यूज़ करेंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज हो जाएगी उन यूनिट्स की। 21 यूनिट्स की सेम रहेगी, उनकी कम हो जाएगी। अब देखें उनका आपके आ रहा है $5 पर kg के हिसाब से, और हर एक यूनिट में लग रहा है 9 kg। सही है। तो 4 9s are 36, पहले एक यूनिट में 36 का मटेरियल लग रहा था। अगर आप $5 के हिसाब से लेंगे 5 9s are 45, तो $45 का मटेरियल लगेगा उन एक्स्ट्रा 29 यूनिट्स में। तो कहना है इससे आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो $9 पर kg से बढ़ गई, $9 पर यूनिट से बढ़ गई। तब क्योंकि आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई $9 से फॉर दीज एक्स्ट्रा 29 यूनिट्स, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका $9 से कम हो जाएगा। तो कहना है इससे कि आप इसके तो 60 यूनिट्स ही बनाएंगे और उस पर आपको 19 का कंट्रीब्यूशन होगा। फिर बी के जो आप फर्स्ट 21 यूनिट्स बनाएंगे ना उन पर आपको वही कंट्रीब्यूशन होगा जो हो रहा है कितने का, $21 का ही।
लेकिन अब जो आप एक्स्ट्रा फर्दर 29 यूनिट्स बनाएंगे ना, उनकी क्योंकि आपकी हर एक यूनिट के बनाने की कॉस्ट $9 से बढ़ गई है, तो उनका कंट्रीब्यूशन $9 से कम हो चुका है। तो 21 माइनस 9 उनका नया कंट्रीब्यूशन आपके पास आएगा 12। तो इन एक्स्ट्रा 29 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है 12। सही है, न्यू कंट्रीब्यूशन है 12। तो अब अगर आप ऐड करें तो आपको नया कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा और उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, विच इज़ 1100। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। 60 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 21 इंटू 21 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1100। तो ये आपका आ रहा है 829। अच्छा, आप फर्दर ये भी कर सकते थे, आप चाहते तो शॉर्टकट कि भाई इसमें देखें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 481। ऑप्शन ए और बी में क्या फ़र्क है? ऑप्शन और बी में ये फ़र्क है कि बस आपने वहाँ एक्स्ट्रा केजी प्रोक्योर करके वो भी बना लिए जो एक्स्ट्रा यूनिट्स थे। तो आप चाहते तो डायरेक्ट ऑप्शन ए के आंसर में 29 मल्टीप्लाई बाय 12 ये निकालते और ये भी ऐड कर सकते थे, तो बात वही हो जाती है। अब दिस इज़ द लास्ट पार्ट, इसमें लिखना है आपने एडवाइज़ द डायरेक्टर विच ऑप्शन दे शुड चूज़, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप ये लिख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ऑब्वियसली। ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस हायर प्रॉफिट, और इसमें आप ये भी लिख सकते ऑल डिमांड इज़ सेटिस्फाइड व्हेन वी गो फॉर ऑप्शन बी। तो ये भी है ऑल डिमांड इज़ सेटिस्फाइड इफ़ वी गो फॉर ऑप्शन बी। सही है। फिर आप एक कोई ड्रॉबैक भी बता दें ऑप्शन बी का। ड्रॉबैक क्या होता है कि विल द न्यू सप्लायर प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल और नो। तो ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन बी के बारे में बात कर, ए के बारे में। इफ़ वी गो फॉर ऑप्शन ए, सही है, we do not need to worry about the price increase in material. We do not need to worry about the price increase of material in option A. The new suppliers might not be reliable while providing goods timely. हो सकता है आपको टाइमली गुड्स प्रोवाइड ना करें, आप उस पर रिलाई कर लो। सही है। हाउएवर, ये तो हाउएवर इफ़ वी गो फॉर ऑप्शन ए वी माइट लूज़। अब हम जाहिर सी बात है हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, तो वी माइट लूज़ कस्टमर्स टू कॉम्पिटिटर्स। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए। 3 मैंने ए के लिए बोल दिया और 3 बी के लिए बोल दिए। अब आप एंड में एडवाइस देते हैं। हेंस आई सजेस्ट वी शुड गो फॉर ऑप्शन ए। कुछ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं और एक उसके लिए पॉइंट लिख दे, वाई आर यू चूजिंग दिस पॉइंट as this is more hassle-free option as customers might complain about product developed using new material। हो सकता है उसमें कंप्लेन आ जाए डेवलप यूजिंग, तो वो आफ्टर सेल्स का एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाएगा आफ्टर product using new material. Thank you.